ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤੇ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਬਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ ਅਠ ਸੜਕਾਈ ਸੁਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਮਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵਾ ਗਾਮਾ ਗਾਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ।
ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਬੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਜ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਿਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ, ਕੀਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ। ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਹੇ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕਹੇ। ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦਾਂ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਇਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ,
नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी भाव लख होवे लख बीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश। ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल। तिस विच जीए जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै नीसान। कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश। केते बरमे घाट कड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते रत्न समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप में कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो कर आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਧਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म
दुखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। चरण कमल का आसरा प्रभु पुरख गुणतास। चरण कमल का आसरा प्रभु पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कट सास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। मात पिता बंधप तू है। मात पिता बंधप तू है। तू सर्व निवास। मात पिता बंधप तू है। तू सर्व निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। मात पिता बंधप तू है। तू सर्व निवास। मात पिता बंधप तू है। तू सर्व निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। 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 दास तेरे की बेनती रिद कर
दास तेरे की बेनती रिद कर परवास, दास तेरे की बेनती रिद कर परवास। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले हमने ये समझने की कोशिश की थी, ये विचार किए थे कि जब तक हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा नहीं हो जाता, उस परम शक्ति के जैसा नहीं हो जाता, मित्रता नहीं होगी उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमने विचार किए थे गुरबाणी द्वारा, गुरु पातशाह ने करवाए थे, जो स्वभाव मूल मंत्र का है वो स्वभाव निरंकार का है। मूल मंत्र के जितने भी गुण हैं, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये सारे गुण हमारे में प्रकट नहीं हो जाते, किसी भगत में प्रकट नहीं हो जाते, तब तक मित्रता नहीं होगी उस एक से, एक ओंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी भी यही बात इस शब्द में कह रहे हैं
कबीर जी अपनी वाणी में कह रहे हैं और बड़े निराले ढंग से कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही कमाल का शब्द है ये और बड़ा ही गहरा विचार है इसके ऊपर। एक एक पंक्ति मन की अवस्था को बयान करती है कि पहले एक्चुअली में महापुरुष समझाया करते थे ये जो शब्द है कबीर जी की अपने मन की अवस्था है कि पहले उनकी अवस्था ये थी, फिर अवस्था वो बनी, फिर वो बनी, फिर जाके मिलाप हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या अवस्थाएं हैं? आइए एक एक पंक्ति को विचार करने की कोशिश करते हैं। कबीर रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कोई ऐसा दास हो तो उसे भगवान आके मिलेंगे। कैसा? कबीर जी कहते हैं अपने आप को पत्थर बना ले, रास्ते का पत्थर। रास्ते का पत्थर क्या करता है? कोई उसे ठोकर मारे वो जवाब नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार खत्म। चाहे कोई तराश कर मूर्ति बनाए, चाहे कोई ठोकर मारे, उस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई उस्तत करे, कोई निंदा करे, निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं रास्ते का पत्थर बन जा। जैसे पत्थर का स्वभाव है, उसे कोई ठोकर मारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू भी पत्थर के जैसा स्वभाव बना ले, तुझे कोई कुछ भी कहे तुझे कोई फर्क ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कहते हैं कबीर जी ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कोई अपने आप को पत्थर बना ले फिर भगवान मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर थोड़ा विचार करते हैं वो, उनकी अवस्था ऊंची हो गई समा डालकर, तो कबीर जी ने दूसरी पंक्तियां उच्चारण की। नहीं कह लगे नहीं, पत्थर नहीं। आगे कहते हैं कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं नहीं पत्थर नहीं, पत्थर में भी अवगुण है। कि रोड़ा हुआ तो क्या भया, पत्थर बन भी गया तो क्या हुआ, रास्ते में पंथी को दुख दे रहा है, वितकरा करता है पत्थर। कैसे? कबीर जी उदाहरण देते हैं, कहते रास्ते में पड़ा है पत्थर, अमीर आदमी आया उसके पाँव में जूता है, उसको नहीं चुभ रहा, वो ठोकर मार रहा है उसे कुछ नहीं कह रहा। पर अब गरीब आदमी आया उसके पाँव में चप्पल भी नहीं है, उसके पाँव को चुभ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पत्थर वितकरा करता है, अमीर को कुछ नहीं कहता, गरीब को दुख देता है, ये निर्वैर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे पत्थर बन भी गया तो किसी को दुख भी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक किसी को दुख दे रहा है ये परमेश्वर का गुण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो राम, वो एक ओंकार गुरु नानक निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई अपना अहंकार खत्म कर भी ले पर निर्वैर ना हो, बैर बनाए रखे दूसरों से। कबीर जी कह रहे हैं बात नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान, तज मन का अभिमान, तज मन का अभिमान, मिले
कबीर रोड़ा हुआ ता क्या भया, रोड़ा हुआ ता क्या भया। पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो तरनी में खे, ऐसा तेरा दास है जो तरनी में खे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बादशाह कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं कि पत्थर है पांव में चुभता है। पहले कहा कि पत्थर बन जा, फिर कहा नहीं पत्थर नहीं, पत्थर वितकरा करता है अमीर और गरीब में, निर्वैर नहीं। कबीर जी कहते हैं मिट्टी बन जा, पत्थर का स्वभाव मत रख, मिट्टी का स्वभाव रख, वो किसी को चुभती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते की मिट्टी बन जा, अपने आप को खत्म कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये निर्वैर है, किसी को परेशान नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कबीर जी कहते हैं नहीं नहीं मिट्टी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था जब कबीर जी की अपने आप को मिट्टी बना लिया तो पाया कि अभी भी स्वभाव प्रभु वाला नहीं बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी में भी अवगुण है क्या? वैसे तो शांत है, कुछ नहीं कहती, पर जब हवा का साथ मिल जाए, उसे ताकत का साथ मिल जाए तो उड़कर लोगों की आंखों में पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वभाव शांत है, किसी को कुछ नहीं कहती, पर जब उसे ताकत का साथ मिल जाए तब लोगों को परेशान करती है, कपड़े भी गंदे करती है, आंखों में भी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कबीर जी कहते नहीं मिट्टी नहीं, मिट्टी परेशान करती है, तब तक शांत है जब तक ताकत का साथ नहीं, ताकत मिलते ही लोगों को परेशान करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है साध संगत जी। महापुरुष कहा करते थे हम लोग जो है ना मजबूरी के शरीफ लोग हैं, मजबूरी के सारे हम सब मुझे मिलाकर मजबूरी के शरीफ, मौका मिले तो चोरी करने से हटेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे ये जो दुकानों में घरों में बड़े बड़े ताले लगाए होते हैं, ये चोरों से थोड़ा बचने के लिए लगाए होते हैं। चोरों के लिए तो तालों का कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर में शादी ब्याह हो, अपने रिश्तेदारी घर में आए हो तो सबसे पहले एक दूसरे को कहते हैं अपना सामान संभाल लो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में चोर तो बुलाए नहीं है, तो रिश्तेदारी, पर पता है मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिट्टी का उदाहरण कबीर जी ने दिया है, हमारा ही उदाहरण है कि जब तक ताकत नहीं है, जब तक मौका नहीं मिला, शांत है, हवा का साथ मिला, अब लोगों को परेशान कर रही है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियन बनने से पहले उनकी नेक सोच होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जैसे ही हाथ में पावर आती है, ताकत आती है, जुल्म शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला ही होता है, विरला एक आध,
जो ताकत आने के बाद भी सही काम करे, नहीं तो ताकत गलत काम करवा ही लेती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे नहीं, मिट्टी नहीं, क्योंकि मिट्टी आंखों में पड़ती है। फिर कहते हैं नहीं, अगर तूने बनना ही है तो पानी बन जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। न पत्थर न मिट्टी, पानी बन जा। क्यों? पानी में गुण है, जिस बर्तन में डाल दो उसमें डल जाता है, अपने आप को खत्म कर लेता है। अपनी कोई हस्ती नहीं पानी की, जिस भी बर्तन में डाल दो उसी में समा जाता है, उसी का आकार ले लेता है। अपनी कोई उसकी हस्ती नहीं, अपनी कोई चॉइस नहीं। कहने लगे अपने आप को इस प्रकार खत्म कर ले, तब तुझे जाके भगवान मिलेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। न पत्थर न मिट्टी, अब पानी। ऐसा को दास होए तान मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताने मिले भगवान, ऐसा को दास हो तान मिले कबीर के हुई तो क्या भया, के हुई तो क्या भया, के हुई तो क्या भया, के हुई तो क्या भया। जो उड़ लागे अंग, जो उड़ लागे अंग, जो उड़ लागे अंग, हर जान ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, हर जान ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, हर जान ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, हर जान ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं पत्थर बन जा, फिर कहते हैं नहीं मिट्टी बन जा, फिर कहते हैं नहीं पानी बन जा। पत्थर भी तंग करता है, मिट्टी भी तंग करती है, निर्वैर नहीं है। पानी बन जा, पानी तंग नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर कहते हैं नहीं पानी भी नहीं, क्योंकि पानी में भी अवगुण है। पहले गुण बताया पानी का कि पानी निवान की तरफ चलता है, विनम्रता में रहता है, जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ बह जाता है, ऊपर नहीं ठहरता। दूसरा गुण पानी का, अपने आप को जिस बर्तन में डाल दो उसमें अपने आप को ढाल देता है, अपना वजूद खत्म कर लेता है। पर पानी का एक अवगुण भी है, कबीर जी कहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता हुए। पानी तब तक शांत है जब तक उसे छेड़ा ना जाए, अगर उसे गर्म कर दिया जाए तो वो गर्म हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसमें क्रोध बहुत है, पानी में शांत तब तक है जब तक उसे उबाला ना जाए। अगर उसे गर्म किया जाए तो वो गर्म हो जाता है, उसे ठंडा किया जाए तो वो ठंडा हो जाता है। स्वभाव एक स्थिर नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तब तक शांत है जब तक किसी ने कुछ को बोल नहीं बोले,
पर जब हमारी सीरत बताई गई है, हम तब तक शांत हैं। कई लोग तब तक शांत रहते हैं जब तक उन्हें गाली ना दी जाए, बुरा भला ना कहा जाए, उनकी निंदा न की जाए। पर जब उन्हें पता चले कि हमारी निंदा कोई कर रहा है, हमें पता चले कि हमारे बारे में कोई उल्टा बोल रहा है, या हमारे सामने कोई बुरे अक्षर कह दे, उसी वक्त गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कबीर जी कहने लगे ये भी निर्वैर नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी भी नहीं, पानी भी नहीं तो फिर क्या? श्रवण कीजिए। पानी हुआ ता क्या भया, पानी हुआ ता क्या भया, कबीर पानी हुआ ता क्या भया, पानी हुआ ता क्या भया, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए, हर जान ऐसा चाहिए जैसा हर ही 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 होए। प्यार से बोलिए धन्यवाद। आखिर में कबीर जी कहते हैं नहीं, न पत्थर, न मिट्टी, न पानी, उस प्रभु के जैसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो गुण उस प्रभु में है उसके हरिजनों में भी वही गुण होने चाहिए, तब उससे मित्रता होगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वैसे ही गुण होने चाहिए जैसे उस परमेश्वर में है, जैसे उस एक ओंकार में है जो मूल मंत्र में है। वो सारे गुण जिसमें होंगे, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। परसों भी यही बात चल रही थी, कल भी यही बात चल रही थी कि ताहे मिले भगवान, कि वो तब मिलेगा जब हमारा स्वभाव उससे मैच कर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब हमारी मित्रता उससे होगी, तब जब मित्रों के गुण आपस में मिलते हों, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान, ताहे। ऐसा कोई दास हो ताहे मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान, ऐसा दास हो ताहे मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे बड़ी बाधा ये जो जिस गुण की चर्चा पातशाह करवा रहे हैं, निर्वैर, इस अवस्था में सबसे बड़ी बाधा है ईर्ष्या, जेलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर भावना में महापुरुषों के अनुसार जितने भी गुण ज्ञानी हुए हैं, सबके अनुसार उन्होंने एक तत्व निकाला है। निर्वैर अवस्था को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा है ईर्ष्या, जो हर फील्ड में पाई जाती है।
जेलसी, अपने से आगे वाले से जेलसी। पातशाह कहते हैं जब तक तेरी ये जेलसी, ईर्ष्या, ये हीन भावना खत्म नहीं होते, तब तक निर्वैरता तुझ में नहीं प्रकट होगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या वो मैल है जो आंखों पर चढ़ जाती है। अगर वो चढ़ जाए तो सामने वाले की अच्छाई कभी दिखाई नहीं देती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले के गुण भी अवगुण दिखाई देते हैं अगर ईर्ष्या की पट्टी चढ़ गई आंखों पर। एक दृष्टांत दास बचपन में पढ़ा करता था एक किताब में। एक किताब थी जिसमें छोटी छोटी ज्ञान की बातें होती थी। उसमें एक ज्ञान की बात थी कि किचन में एक घरवाली खड़ी है, वाइफ खड़ी है, तो किचन की खिड़की से देखकर कह रही है कि सामने जो घर वाले हैं, उनकी जो घर वाली है, सामने जो रहते पड़ोसी, वो कपड़े साफ नहीं धोते, उसके कपड़े मैले ही रहते हैं, उसे कपड़े धोने नहीं आते। वो देखो कपड़े गंदे हैं, सूखने डाले हुए हैं पर कपड़े गंदे हैं। अपनी खिड़की से हमेशा देखकर बोलती है अपने पति को। पति रोज देखता है, कुछ बोलता नहीं। एक दिन क्या करता है पति, जब वो कहती है कि कपड़े गंदे हैं, पति खिड़की साफ कर देता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कांच पर मिट्टी लगी हुई थी इसके, गंदी इसकी खिड़की थी। जब खिड़की साफ की, पति कहने लगा देख कपड़े साफ हैं, तेरी खिड़की का कांच गंदा था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव पड़ोसी है, पड़ोसी से पड़ोसी की ईर्ष्या होती है। अगर पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां हैं, हमारे पास एक क्यों? हर से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या जाग जाती है। और हमारे इंडिया में एक अलग ही सोच है। बाहर के देश में किसी के पास 1 गाड़ी 2 गाड़ी हो जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए ना, तो पड़ोसी सोचता है मैं भी मेहनत करूंगा, बड़ी गाड़ी लेकर आऊंगा। पर इंडिया में अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है, सामने वाले के पास मर्सिडीज आ गई, तो ये नहीं सोचते कि हम मेहनत करके बड़ी गाड़ी लाए, ये सोचते हैं कि उसकी गाड़ी ठुके कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, नींबू मिर्ची जंतर मंतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम टांग खींचने में लगे रहते हैं, पॉजिटिवली नहीं लेते किसी भी चीज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक ये ईर्ष्या की भावना है, वो दृष्टांत सबको याद होगा कि हम अंधे होने को तैयार हैं, हम काणे होने को तैयार है कि पड़ोसी अंधा हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान ने कहा था ना, मांग जो मांगता है, पर एक बात याद रखना, तो जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी के पास डबल हो जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है ऐसे कैसे? घालना मैंने घाली, तप मैंने किया, मेरे पड़ोसी को क्यों डबल मिल जाएगा जो भी मैं मांगूंगा? भगवान कहता तुझे जो मांगना है तू मांग लेना, पड़ोसी की फिक्र क्यों कर रहा है? अब मन में ईर्ष्या जाग गई, मैं क्या मांगू? अब 1 गाड़ी मांगूंगा, पड़ोसी को 2 मिल जाएंगे। कहता भगवान अगर मैं 2 बंगले मांगूंगा तो उसको 4 मिल जाएंगे। भगवान कहते तुझे 4 चाहिए तो 4 मांग ले, पर कहता पड़ोसी को तो 8 मिल जाएंगे ना। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दृष्टांत है। आखिर में बड़ा सोच विचार के कहता है भगवान मेरी एक आंख ले ले ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर मिला भी क्या लिया, अपने आप को काना कर लिया। ईर्ष्या वो अवगुण है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका कोई आनंद नहीं ले पाता इंसान, क्योंकि आग लगी रहती है अंदर दूसरों को देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दे दिया है। क्या दिया है? अमृत वेले उठ के जब कोई नाम जपता है, उसके अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि जो भी बड़ा है तुझसे, वो अपनी मेहनत से नहीं, गुरु नानक की कृपा से बड़ा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है। जो लोग ये सोचते कि हमने बड़ी मेहनत की है, विचार कर लिया करो बानी के ऊपर। मेहनत करना हमारा फर्ज है। मेहनत को ही फल लगता है। भगवान मेहनत करने वाले को ही फल लगाता है, पर उसकी मर्जी है कितना फल लगाना है उसने। मेहनत करना हमारा कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं। पहले भी दास ने बात बताई थी, बीज हम बो सकते हैं, पर बीज में कितनी गेहूं लगेगी, पेड़ में कितने फल लगेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। अर्जुन तू लड़ सकता है युद्ध, जीतना या हारना तेरे हाथ में नहीं है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तीर चला सकता है, इस तीर से, ये कर्म तेरे हाथ में है, पर इस तीर से वो मरेगा या बच जाएगा ये तेरे हाथ में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा कोई दास ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। सिद्धों ने सवाल किया कि आप कहते हो कि वो एक ओंकार निर्वैर है, हम नहीं मानते, वो निर्वैर नहीं है। मेरे गुरु नानक पातशाह पूछते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं मानते कि वो निर्वैर है? एक वही तो निर्वैर है। सिद्ध कहने लगे अगर वो निर्वैर है, उसने जितनी खलकत बनाई है, किसी को अमीर किसी को गरीब, किसी को दुखी किसी को सुखी, ये वितकरा नहीं तो और क्या है? ये बैर ही तो है। किसी से बैर है उसे कम दिया है, जिससे बैर नहीं जो अच्छा लगता है उसे ज्यादा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया, कहने लगे नहीं वो निर्वैर है। इंसान सुखी है अपने कर्मों से, दुखी है अपने कर्मों से। इंसान गरीब है अपने कर्मों से, अमीर है अपने कर्मों से। इंसान चपरासी है अपने कर्मों से, इंसान ऑफिसर है अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। एक सो रहा है मखमली बिस्तरों पर, एक ऊपर रहकर पंखा कर रहा है खड़ा होकर। दोनों में क्या अंतर है? पातशाह कहते हैं एक ने जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं, जंगल में अकेला बैठा है तो भी सुखी है, और अगर के इंसान के कर्म नेक नहीं, राज गद्दी पर बैठकर भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, ये तो इस पर तो इतने सारे प्रमाण है ना साथ संगत जी, इतनी सारी कथाएं हैं। इस एक ये टॉपिक ही अलग हो जाता है, कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत ऐसा है कि इसे समझने के लिए बड़ा ही भीतर उतरना पड़ता है, बड़ा ही गहरे विचार में उतरना पड़ता है। ये तो कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आता अच्छे अच्छों को। एक घटना मुझे याद आ गई बीच में, कैसे जब किसी की मौत आती है वो वहां पर जाकर पहुंचता है जहां पर उसे मरना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत कहते हैं ना, मौत खींच लाई उसे। सच है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि जहां इसकी मौत लिखी है उसे वहां पर अपने आप वहां पहुंच जाना है उसने उस वक्त। अगर घर में लिखे तो घर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल में लिखे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। जहां पर मौत लिखी है वहां पर इसके पांव से अपने आप वहां पहुंचा देंगे। कर्म सिद्धांत है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मुझे पूरी तरह से घटना याद नहीं आ रही, मैंने पहले सुनाई है, पर शॉर्ट में दास जितनी समझ में आ सके, क्योंकि ये ज्ञान तो मिल जाएगा कि कैसे मौत अपने पास बुला लेती जहां मरना होता है। एक आदमी मरना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कहानी नहीं है, ये मिथिहास है। वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इस गाथा को लिखा हुआ है वेदों में। मुझे राजा का नाम भी याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो राजा मरना नहीं चाहता, उसने अपने गुरु से कहा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मौत छू ना सके, इसका कोई उपाय बताओ।
तो वो गुरु बड़ा पहुंचा हुआ था। कहने लगा मैं तुझे शरीर के साथ तुझे मैं विष्णु भगवान के पास ले चलता हूँ, वहां तुझे कोई नहीं मार पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे विष्णु भगवान का साथ हो उसे कौन मारेगा। राजा मान गया, अपनी विद्या से अपने तप से वो उस राजा को विष्णु भगवान के पास ले गए। विष्णु भगवान कहने लगा क्यों आए हो यहाँ पर। कहने लगे मौत से बचने के लिए। वो कहने लगे मैं नहीं बचा सकता मौत से, इसके लिए शिव जी के पास चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु भगवान उसे शिव जी के पास ले गए। ये शास्त्रों में लिखी हुई गाथा है, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा और ना ही ये मेरी लिखी हुई है। शिव जी के पास चले गए। शिव जी कहने लगे भाई मैं नहीं बचा सकता, ब्रह्मा जी बचा सकते हैं शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और इसके गुरु सब इकट्ठे हो गए। उसी वक्त धर्मराज वहां प्रकट हुए। कहने लगे अब इसकी मौत का समय हो गया है। पर वो कहने लगे भाई इसकी मौत कैसे है, तो हमारे पास आए। कहने लगे इसकी मौत लिखी इस प्रकार थी, जहां पर आप तीनों इकट्ठे हो जाओगे तब इसकी मौत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मौत लिखी इस प्रकार से हुई है कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो जाएंगे और ये सामने खड़ा होगा तब इसकी मौत होगी। अब ये इकट्ठे हो गए हो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहने का भाव उसमें यह बताया गया था कि वो भाग रहा था मौत से और उसकी मौत वहीं लिखी हुई थी जहां वो जा रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है मरण लिखाया मंडल में आया। पहले मौत लिखी जाती है फिर धरती पर भेजा जाता है। फिर पहले मौत लिखी जाती है कि मरना कैसे है, फिर जन्म लेता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं भाई इंसान दुखी है अपने कर्मों से, सुखी है अपने कर्मों से, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो निर्वैर है, वो तो बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीहो तेहा फल पाया। गुरबाणी पंक्तियां भरी पड़ी हैं इस बात से। दद्दा दोष न देव किसे दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। जो तूने कर्म किया उसी हिसाब से तुझे वो फल खाने पड़ रहे हैं। जेहा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। वाणी कहती है जो तू बीजेगा वही काटेगा, ये कर्मों का खेत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता तू गेहूं बीजे और चावल उगे। गेहूं बीजेगा गेहूं ही उगेंगे, कांटे बोएगा कांटों का पेड़ ही उगेगा। तेरी मर्जी है तू कैसे कर्म कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा करते थे एपीजे अब्दुल कलाम ये बात कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, भविष्य हमारे हाथों में, ये सच है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, हमारे हाथों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मिलना है उस प्रभु से तो निर्वैर होना पड़ेगा जैसा वो एक निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा को दास हो मिले बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडा देही रोग ना लगे पल्ले सब किछ पल्ले सब किछ हर से बोलिए धन
फरीद जी से आकर किसी ने बेनती की, बहुत दुखी हूँ, बहुत रोग लग गए हैं शरीर में, कोई उपाय बताइए। कबीर जी ने एक सिंपल सा जवाब दिया, पर जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा कहने लगे एक काम कर ले, जो तेरे साथ बुरा करे उनका भला कर दिया कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को ये इतनी छोटी सी बात है, पर करने को इससे बड़ी कोई बात नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ कोई बुरा करे, कोई थप्पड़ लगाए, तो हम जब तक दो ना लगा दे हमें चैन नहीं आता, और अगर हिम्मत नहीं मारने की तो सपने में उसे पीटते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मन में रखते हैं कि एक दिन बताऊंगा जब ताकत आएगी हाथ में। फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, जो तेरे साथ बुरा करे तो उसका भला कर। और आगे कहते हैं गुस्सा मन ना हंडाए। हंडाने का भाव पता क्या होता है? कहते हैं ये कपड़ा बहुत हंडा लिया इसने, कहने बहुत देर तक पहन लिया, बहुत महीनों पहन लिया, बहुत हफ्तों पहन लिया, हंडा लिया कपड़े को। हंडाना कहते हैं रोज 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 उसके बारे में विचार करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही करते हैं। अगर हमारे से ताकतवर ने किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है, बुरा कर दिया है हमारा, हम इंतजार करते हैं कब मौका मिलेगा, और मन में वो गुस्सा रखते हैं, उसे हंडाते हैं, पालते हैं उस गुस्से को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं अगर तू ये ना करे, बुरे का भला कर दे जाके, और मन में गुस्सा पाले ना, माफ कर दे उसे, तो क्या होगा? देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। तेरी देह में कभी कोई रोग नहीं लगेगा। कितनी बड़ी दात है। और पल्ले सब कुछ पाए, तुझे जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये वाणी है, फरीद जी कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसे दाखिल करके, इसे अपनाकर उसे प्रमाणित कर दिया कि वो सच कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी 3 काल सत्य है, पर कोई कर ले, हमसे ये होता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विश्वास है एक दिन होगा, इसीलिए तो कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संगत कर रहे हैं। गुरु नानक की कृपा से वो करवा रहा है, पर एक विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सच में मन ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे साथ बुरा करे उसका भी भला कर दे। ये तो हमें सिखाया है सिक्खी में। अरदास में आखिर में कहते ही हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ऐसा को दास ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल के कीर्तन में एक पंक्ति बार बार आ रही थी, सतगुरु अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। ब्रह्म सब में वो एक दिखता है, सबको एक नजर से देखता है, उसकी नजर में वितकरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दानी को भी दे रहा है, भिखारी को भी दे रहा है, पुण्य करने वाले को भी दे रहा है, पापी को भी दे रहा है, जो शराब पीते हैं उन्हें भी दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी दे रहा है, हम जैसों को भी दे रहा है, अकीर्त घनों को भी दे रहा है। उसकी नजर में वितकरा नहीं, निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, बहुत ही प्यारी है।
और इस घटना में इतने मोड़ हैं कि कैसे सतगुरु निर्वैर है। देखने में लग सकता है कि वो सख्त है, वो हमारा अज्ञान है, पर अंदर से निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी, बड़ी प्रेम वाली ये घटना है। गुरु नानक मेहर करें। ये जो प्रेम का अभी प्रसंग शुरू होगा, एक तिनका प्रेम का हमारे भीतर भी समा जाए, ये अरदास करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी तख्त पर विराजमान है, मेरी पीरी के मालिक। गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वें गुरु नानक मेरी पीरी के मालिक तख्त पर विराजमान है। एक मुसलमान जिसका नाम आया है जानी खान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अपनी सारी जिंदगी बंदगी में गुजार दी, सारा जीवन बंदगी में, पर प्राप्ति नहीं हुई, खुदा से मिल ना पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जो जिसने बताया, उसके गुरु पीर ने जो रास्ता बताया उसने किया। 5 वक्त की नमाज, कलमा पढ़ी, तस्बीह फेरी, हर चीज उसने की जो कर सकता है, पर अंदर खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से भरा हुआ, आंखों में आंसू रहते हैं, हमेशा आंखें भीगी रहती हैं। पूछता है बाहर आकर कि मेरी पीर के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत से पूछता है, संगत इशारा करती है, सिखों से पूछता है, भाई मेरी पीर के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत कहती है, भाई वो दीवान लगा हुआ है, 6वें गुरु नानक वहां बैठे हैं। चला जाता है दीवान की तरफ, पर 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी उठकर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह का दीवान है, उठकर चले जाते हैं। ये वहां जाकर बैठ जाता है, पूछता है कब आएंगे। संगत बताती है उसे अब शाम के दीवान में दर्शन होंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंतजार करता है, वहीं बैठा रहता है। शाम होती है, गुरु हरगोबिंद साहब जी आकर अपने तख्त पर विराजमान होते हैं। सारी संगत दर्शन कर रही है, इसने भी दर्शन किए। आंखें भीग गई, पहले ही भीगी हुई थी, आंसू बह चले। उठकर पास में गया, माथा टेका। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते, भाई क्या काम है, क्यों आया है। कहते मेरा नाम जानी खान है। वो कहता है मैं मुसलमान जानी खान हूं। सारा जीवन हो गया बंदगी करते हुए, जो जो मेरे गुरु पीर ने कहा मैंने किया। अब जब आगे का रास्ता गुरु पीर नहीं बता पाया तो मैंने उसे पूछा अब मैं क्या करूं। मेरा पीर कहता है कि इससे आगे का रास्ता मुझे नहीं पता। अगर तूने प्रभु को पाना है, खुदा के दर्शन करने हैं, खुदा को पाना है, तो मेरी पीर के मालिक के पास चला जाओ। वो इस वक्त खुदा का नूर धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है, मैं आया हूं यहाँ पर। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते क्या चाहता है। कहने लगा जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहता है जनी खान, क्या कहता है कि जानी को जानी से मिला दो। उसका नाम जनी था, जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से मुख से ये वचन निकले। जैसे ही गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वें गुरु नानक ने ये बात सुनी, भाई बिधि चंद की तरफ इशारा किया, पास में खड़े थे। कहने लगे इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो, धक्के मार के बाहर निकाल दो, उसे दूर छोड़ के आओ, यहाँ मुझे दिखना नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख हैरान, संगत हैरान, ये हैरान, भाई बिधि चंद जी हैरान कि ये तो ऐसा कभी किया ही नहीं गुरु ने। कोई आके कह रहा है कि खुदा से मिला दो और गुरु कह रहा है कि धक्के मार के बाहर निकालो इसे। पर कोई बोलने, किसी की हिम्मत नहीं गुरु साहब जी के आगे सवाल करे। और हुक्म है धक्के मार के, तो धक्के मार के इसे बाहर निकाला गया।
प्यार से नहीं, धक्के मार मार के। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा था इसे दूर छोड़ के आना, मेरी नजरों में दिखे ना ये, और दूर छोड़ के आए इसे, धक्के मार मार के जहां छोड़ के आए वहां बैठ गया, ये रो रहा है और बैठ गया वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऊपर से गुरु साहब जी ने हुक्म दिया इसके आसपास कनाते लगा दो, पर्दा लगा दो, पर्दे लगा दो, ताकि मैं वहां से गुजरूं मुझे ये दिखाई ना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना मुझे ये दिखाई दे ना ये मुझे देख पाए। इसके आसपास कनाते लगा दी गई, तंबू लगा दिए गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर्दा कर दिया गया कि ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन न कर सके। हद हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या लगेगा, सतगुरु निर्वैर है? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सिखों का ही सतगुरु है, मुसलमान आया तो उसे धक्के मार के निकाल दिया। हमें तो ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि हमारी सोच छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी वही जाने, उसकी वही जाने। हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी समझ उतनी है ही नहीं। एवड ऊंचा होवे कोई, तो उस ऊंचे को जाने सोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नर्सरी वाले बच्चे को एमए का सवाल दे दो, क्या क्या समझेगा वो? हमारी वो हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन बीत गया सत्संग जी, शाम से लेकर सुबह हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब जी दीवान में आते हैं। भाई विधि चंद से पूछते वो चला गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विधि चंद कहता है पातशाह बैठा है। वहीं बैठा है जहां धक्के मार के छोड़कर रहते, वहां से जा नहीं रहा और ना ही वहां से उठा है, ना हमने उसे कुछ खाने को दिया है ना पीने को दिया है। वहीं बैठा है। आप तरस करो उसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे उसे भोजन खिला के आओ, भोजन दो, उसे पानी दो, खाने के लिए कुछ दो और कहो यहाँ से चले जा। अब भाई विधि चंद जी संगत के साथ उसके पास गए, उसे भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पर वो ना पानी पी रहा है ना भोजन खा रहा है। भाई विधि चंद जी कोशिश करके थक गए, वापस आ गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते हैं उसने कुछ खाया? कहने के पातशाह कुछ नहीं खा रहा, रोते जा रहा है, गला भी उसका सूखा हुआ है, पानी भी नहीं पी रहा, पर एक आवाज आ रही है उसके गले से, क्या? जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यही सुनाई देता है, एक ही बात कह रहा है कि जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा के कहे कुछ नहीं कहा, चुप कर गए। ऐतिहासिक घटना है सत्संग जी। 2 दिन बीत गए, 2 दिन 2 रात। दूसरे दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी पूछते हैं वो गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है अंतर्जामी, सब जानते हैं, पर सिखों से पूछते हैं कि वो बैठा है कि गया। भाई विधि चंद जी कहते पातशाह आज भी बहुत कोशिश की, भोजन लेकर गए उसके पास, खा पानी पी और चला जा, पर वो भी उसके गले में से आवाज भी पूरी नहीं निकल रही। फिर एक ही बात कह रहा है, जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। आंखों में आंसू है पातशाह, समझ में नहीं आ रहा है कैसा आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई विधि चंद जी कहते पातशाह लगता है कोई पागल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह लगता है कोई पागल है। गुरु साहब जी कहने लगे नहीं विधि चंद, ये बैराग की परम सीमा तक पहुंच चुका है, परम सीमा, ये किनारे पर बैठा है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका निर्णय होना है कि ये पाएगा कि नास्तिक बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कल ये बात कही थी साथ संगत जी कि प्रभु को पाने में एक भक्ति की परम सीमा में और नास्तिक होने में केवल एक बारीक लाइन रह जाती है, और 99% लोग डोल कर नास्तिक हो जाते हैं। कोई विरला होता है जो इस इम्तिहान से पास हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे देखो हमें ये अरदास करनी है, हमेशा करते रहनी सिक्कों के इम्तिहान मत लेना। सिख का फर्ज है यही अरदास करे कि हे गुरु नानक हमारा इम्तिहान मत लेना, हम फेल ही फेल हैं, हम पास नहीं हो सकते।
पर कहते थे गुरु इम्तिहान तो लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी सेकंड से थर्ड में जाना हो एग्जाम तो होगा, थर्ड से फोर्थ में जाना एग्जाम तो होगा, एग्जाम के बिना अगली क्लास नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सिख जब ये अरदास करता रहता है ना, पातशाह मैं फेल ही फेल हूँ, फेल ही फेल हूँ, तू पास करे तो मैं पास हूँ, तो कहते थे पास भी वो खुद करता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कभी ये नहीं जताना कि अपनी मेहनत से हमने कुछ पाया है, कि हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं। नहीं, वो करवा रहा है, वो तुझे पास करना चाहता है इसलिए तुझसे करवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन तैयार कर रहा है, छोटे छोटे दुख देकर, बड़े दुख देकर चोट मार रहा है, बर्तन का सांचा बना रहा है जिसमें वो अमृत डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं, वो पागल नहीं है। संसार ने मीरा को पागल कहा, राधा को पागल कहा, कबीर जी को पागल कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जब बाबा मार राम सिंह जी ने उनसे कहा ना कि कुछ मांग ले, कहने के पातशाह मेरी दुनिया की तरफ से मत मार दो मेरी, कि लोग मुझे पागल कहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके बिना प्राप्ति नहीं होती, आखिर में एक पागलपन चाहिए होता है, अंत जब हद हो जाती है। यही हालत जनी खान कह रहा है, जानी को जानी से मिला दो। 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई, भूखा है, प्यासा है, धक्के मारकर जहां छोड़ा है वहीं बैठा है, उठ के बाहर भी नहीं आया। और गुरु हरगोविंद साहब जी भाई विधि चंद को कह रहे हैं, ये पागल नहीं है, ये बैराग की परम सीमा को छू रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु को पाना है तो ऐसा ही बनना पड़ता है, ऐसा ही बैराग चाहिए, ऐसा ही। ऐसा कोई दास ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3 दिन हो गए साथ संगत जी, 3 दिन 3 रात। गुरु हरगोविंद साहब जी भाई विधिचंद से पूछ रहे हैं, उसने कुछ खाया? विधिचंद कहते पातशाह नहीं, अब तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, मरने की हालत में है, लगता है बचेगा नहीं। पर एक हल्की सी आवाज उसके पास से अब भी आ रही है, क्या? जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी यानी वो खुदा, वो एक ओंकार, और खुद को भी जानी कह रहे, उसका नाम जनी खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी को जानी से मिला दो। कहते पातशाह बड़ी मुश्किल से आवाज सुनाई देती, कान पास में करो उसके मुंह के तो, और आवाज यही है, जानी को जानी से मिला दो। मेरे हरगोविंद साहब जी पातशाह तख्त से उठे, संगत साथ में, सिख साथ में, भाई विधि चंद जी साथ में, उस कनात के पास पहुंचे जहां पर धक्के मारकर उसे छोड़ा था। कनात हटवाई, सामने खड़े हो गए, कहने लगे जनी खान खुदा से मिलना है। जनी खान जिसके शरीर में ताकत नहीं, एकदम उठकर खड़ा हो गया, कहने लगे हाँ मिलना है, जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे आज ही मिलना है, कहने लगा आज ही मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे अभी मिलना है, कहने लगा अभी मिला दो। कहने लगे वो सामने दरिया है, जाके उसमें छलांग लगा दे, तुझे खुदा मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत फिर हैरान, विधि चंद हैरान, भाई विधि चंद जी कि ये क्या कर रहे हैं पातशाह, वो तो पहले ही मर रहा है, उसे दरिया में छलांग लगाने के लिए कह रहे हैं, अब हमें फिर लगेगा कि कितना सख्त है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
पर सतगुरु अंदरों निर्वैर है, वो निर्वैर है, उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं। हमें लग सकता है वो सख्त, पर वो हो नहीं सकता सख्त, क्योंकि वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे, सामने दरिया बह रहा है, जाके छलांग लगा दे। जैसे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ये बात कही, वो दौड़ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोई मुझे बचाने आ रहा है, कोई रोकने आ रहा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी देख रहे हैं, शायद आवाज दे दें। वो दौड़ पड़ा छलांग लगाने। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा के कहने लगे, विधिचंद जा पीछे भाग, वो छलांग लगा देगा, और जब लगा दे दरिया में तू भी लगा देना, उसे बचा के ले आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुकने वाला नहीं है, जा पीछे। सतगुरु अंदरों निर्वैर है, इम्तिहान लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान लेता है, बचाता भी है। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। पर जरा विचार करो, अपने आप को उसके जगह पर रख कर देखो। 3 दिन न खाया न पिया, मरने के कगार पर आ गया, धक्के मारे, बुरा नहीं माना। हमें कोई कुछ कह दे, 2 अक्षर, उसका चेहरा नहीं देखेंगे हज के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद दरिया में छलांग मारने दौड़ पड़ा। वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, विचार नहीं किया। इतने सिदक, इतना भरोसा, इतना विश्वास गुरु हरगोबिंद साहब जी पर, क्योंकि उसके पीर ने कहा कि ये तुझे खुदा से मिला देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की चरम सीमा। हम सोचते हमें क्यों नहीं मिलता, क्या हम इस लायक हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दास ये कथा के विचार कर रहा था, सोच रहा था कि हम तो नालायक हैं, चाहते हैं कि वो मिले, पर कैसे मिले? ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान, हम ऐसे हैं ही नहीं, तो पाएंगे कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर वही बात, विश्वास, कि ये विश्वास, ये सिदक भी वही बख्शेगा, उसी को बख्शना होगा, क्योंकि उसी के भरोसे बैठे हैं। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चूके बारक तू हर पिता माया। तू पिता है, तू माता है, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंड सब गुण मेरा। तेरा फर्ज है हमारे गुनाहों को अनदेखा करना, तेरा काम है। तू हमारा पिता है, तुम्हारी माता है। जैसे माता अपने बालक का दोष नहीं देखती, तुझे भी नहीं देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम निकम्मे हैं, निकम्मे ही रहेंगे, तू हमसे काम ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हे वाहिगुरु, तरस कर। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जानी खां से कहा, अभी पाना है तो दरिया में छलांग लगा दे। भाई विधिचंद से कहा, पीछे से जा, और जब ये छलांग लगा दे तो तू भी दरिया में छलांग लगाकर कूद कर उसे निकाल कर ले आ। और भाई विधिचंद ने यही किया, उसने छलांग लगा दी दरिया में। भाई विधिचंद जी कूदे, उसे निकाल कर लेकर आए। अब भीगे कपड़ों से खड़ा है गुरु हरगोबिंद साहब जी, मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर। कहने लगे, जानी खां हमारी आंखों में देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी खान ने गुरु हरगोबिंद साहब जी की आंखों में देखा। महापुरुष बताते हैं, जो लिखा हुआ है वहां पर भी वही लिखा हुआ है। महापुरुष भी एक ही बात बताते हैं। कहने लगे, जानी खान को वो अनुभव हुआ कि जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी उसकी आंखों में समा रही हो। करोड़ों सूरजों की रोशनी। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से पूछा था कि निरंकार से मिलकर आए हो आप, एक ओंकार जब मूल मंत्र लेकर आए, कैसे दिखता है निरंकार? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा था, ऐसा लाल रंग है जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी हो, और वो ऐसा लाल है, उस लाल के जैसा इस धरती पर कोई लाल रंग नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी लाल तुझ में कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छतर धरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही बात जानी खां को अनुभव हुई और चिल्ला पड़ा कि मुझे खुदा मिल गया। शरीर कांपने लगा उसका, मुझे खुदा मिल गया, मैंने खुदा को पा लिया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उसे गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गले से लगा लिया। उसकी हालत ये हो गई, दर्शन देखते ही सुध की न सुध रहे, बुद्ध की न बुद्ध रहे, मत में न मत है। देख पहले भी रहा था गुरु हरगोविंद साहिब जी को, पर अब जो उसको आंखें मिली उससे गुरु हरगोविंद साहिब जी के दर्शन कर रहा है। और दर्शन किए कहने लगा मैंने खुदा को पा लिया। और जब गुरु ने गले से लगा लिया, गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। और आसपास जितनी सिख संगत खड़ी है रोने लगी जोर जोर से बैराग में, पातशाह 3 दिन में ले गया, हम सालों से सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 दिन में ले गया। गुरु हरगोविंद साहिब जी कहने लगे नहीं, 3 दिन में नहीं ले गया, 3 दिन तो इसका इम्तिहान था, इसकी मेहनत तो कई जन्मों की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जन्म लगते हैं ये सिद्धक बनने में, ये भरोसा विश्वास बनने में। जिस दिन इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना सिद्धक अपने गुरु पर आ गया, गुरु खुदा से मिला देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस एक ओंकार परम शक्ति से मिला देगा वो, भरोसा उतना बन जाए। इसीलिए ये सेवा, ये सिमरन, ये अमृत वेला की अवस्था बन जाए, ये बर्तन तैयार हो जाए। कब होगा हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे जब माला भी फेरते हो ना, यहाँ पर तो किंतु परंतु के माला भी नहीं फेरनी, वो तो हर एक की अपनी अवस्था है। जब प्रेम की बात हो रही है तो प्रेम की बात करें। कहते थे जब माला फेरते हो ना तो इस विश्वास से फेरा करो, पता नहीं इस मनके पे मिलना है या इस मनके पे मिल जाएगा अभी। इस बैराग से, इस उड़ीक से, इस भावना से मूल मंत्र जपो या वाहिगुरु जपो, शायद अब मिल जाएगा। क्योंकि उसके लिए गिनती नहीं है, अरबों खरबों जप के कोई पालेगा, कोई कहे कि 10 अरब जप ले पालेगा, 100 अरब जप ले, नहीं, फिर तो उसकी कीमत हो गई, वो तो कीमत से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलेगा तभी जब उससे मिलना होगा, मिलेगा तभी, चाहे वो अभी मिल ले, चाहे 100 जन्मों बाद। ये उसके बस में है, हमारे बस में नहीं। पर जो बाबा कुंदन सिंह जी के वचन याद आते हैं कि झोली जरूर भरती है, जो जुड़ा रहे, जो फल पेड़ से लगा रहता है उसमें रस भर जाता है, जो पहले टूट जाए वो कच्चा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख काला न पवे, दर न छड़े, अहंकार न करे। 3 गुण हो, अहंकार न करे, बाबा कुंदन सिंह जी वचन करते थे, दर न छोड़े और काला न पवे, भाव घाई न करे, सहज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युगों तक धरती के नीचे दबे रहा वो, संतोखा रिखी, संतोख 4 युगों तक गुरु नानक पातशाह के दर्शन करने के लिए ये संतोख चाहिए, ये संतोख, ये सिदक। उसकी मर्जी अभी मिल ले, पर संतोख तो रखना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हे गुरु नानक, संतोख भी तू ही बख्श। संतोख नहीं है हमें, हम डोल जाते हैं। तरस कर, रहम कर। ना हमें संतोख है, ना हमारी अवस्था बनाने की काबिलियत है, ना हमारा ऊंचा जीवन, दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और। तरस कर, तू तरस कर, बस तरस करके मिल ले। अगर वेट करेगा कि हमारी कमाई हो जाएगी फिर मिलेगा, तो कभी मिलन नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तरस कर, ऐसा को दास ता मिले दास ताहि मिले भगवान। ऐसा कोई दास होय ताहि मिले भगवान।
मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए ताहि मिले पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा। और भजन के रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए। चुन सतर हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा। श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए सब जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद करक करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करक करत हूँ कब हूँ। मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने बोझ उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम। भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद संभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा। को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमान। महामूढ़ कछ भेद न जान। महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती। तो पेन पेन तो तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा। कुछ सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीनी। कुछ खान बहो रच देने। कहूँ कुल राजा हव बैठा। समट प्यो संतर बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर। के दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है। आके काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट जाय निहारो। आके ताप तनक मोहर। और तो सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट छा सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल पास ते ताए उमारा। जिन नर नाम तिहारो कहा। दुष्ट लोक ते रहा। खड़ग की तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाई। दुष्ट लोक ते ले बचाई।
खड़ग कीत में शरण तिहारी, आपो हाथ दे ले ओ बारी। सर्व टोर मोह सहाय, दुष्ट दुख दे ले ओ बचाए। राम कली महला तीजा, आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइया। आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिदे सो पावे। तेरी नाम मन सावे, नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द मेरे। कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, करसान सुख मन आए वस्या। जिन इच्छा सब पूजाइया, साचा नाम मेरा आधारो। साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे। कला जित कर तारियां, पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल सूरे। पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद धुरे सलो। पवन गुरु पानी पिता, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर। कर्मी आपो अपने, जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया। वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।